Guys, I've shared my screen. Let me know once you can see the screen. Hello. Guys, can you see my screen? Are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay. Acha, have we completed transactional analysis last time? Because it's a very important topic. Yes, ma'am. Till transactional analysis. And the 3 stages, parent, child, and adult. Till that. Okay. Okay. So the next topic which we are going to cover is anthropology, which is again a very important topic. So generally you get a question on anthropology also. Okay. Sometimes when it is in a short note, sometimes you been given some scenario wherein you will be asking, like you'll be asked to give the name, like what kind of study it is and what do you know extract from this. Achha, one more thing, transaction analysis is very very important. So all 3 stages में से कोई ना कोई कभी कभी एक single question भी बन सकता है. So you all have to prepare accordingly. ठीक है? Okay. Okay guys. Hello. Yes, ma'am. ठीक है. Acha, I have one message. Acha, okay, ma'am. Himani has got a network problem today. Okay, so like I mean, whenever we study traits, generally, जब भी हम लोग human study की बात करते हैं, human behavior की study की बात करते हैं, तो उस तरह की study generally हम लोग anthropology बोलते हैं. Like whenever we talk about the behavior, the human traits, the personalities, even the behavior among the groups. So whenever we study the human behavior, human tendency, whenever we study the human traits, to understand how a person will be reacting or behaving in a group, in a society, in an office. So that sort of study is known as anthropology. So anthropology studies human behavior more at an individual level, while sociology focus more on group behavior and relations with social structures and institutions. So it is like, more or less, it goes together. तो जनरली कब होता है एंथ्रोपोलॉजी हम लोग कब स्टडी करते हैं whenever we are planning to create some brainstorming session wherein we would require people to behave in a certain manner. क्योंकि जब भी अब आप देखोगे ना, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं या नॉलेज शेयरिंग सेशंस होते हैं या फिर किसी हमें पर्टिकुलर स्ट्रेटजी या ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना होता है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी डू, we invite some group of people, we invite some couple of intellects to come and discuss on such topics. Now हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करवाना या काम लेना या डिसीजन को समझना है, लेकिन उसी के साथ साथ हम ये भी स्टडी करेंगे कि जो ग्रुप हम लोग बुलाएंगे उसमें हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनका बिहेवियर एस्पेक्ट्स कैसा है. दे मे बी वेरी इंटेलिजेंट बट दे मे नॉट रिएक्ट इन अ रिक्वायर्ड मैनर. सो उस केसेस में हम लोगों को एंथ्रोपोलॉजी की भी मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी भी करनी होती है on a human aspect, on a human behavior. Getting? Sorry. Yes, ma'am. Okay. Sorry, I have a bad throat today. Okay. Next is personality. So whenever we start studying transactional anthropology, so obviously we are coming close to a human behavior, a human personality. So that is why now we'll be also be going through personality and personality development traits क्या होते हैं ये सारी चीजें. Okay, so what according to you people is a personality? What do you mean by personality?
think about it. Don't go by definition. Just because see why I'm asking this question, because when you will be moving to organization and when you will start moving to higher roles, upper roles or top management, there is more aspect of your job is to manage people, correct? क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं आपके अंदर का स्पैन जो है, मतलब लोगों का स्पैन, मतलब जैसे आप जिन लोगों को मैनेज करते हैं वो बढ़ता जाता है. So you start working more on the human aspect, behavior, people management and objective management. जो भी आपका objective है, strategy है, तो ज्यादातर आपको लोगों से डील करना होता है. तो अब उस आस्पेक्ट से सोचो कि पर्सनैलिटी क्या हो सकती है. थिंक थ्रू. No one? Only chat box? Himani? Behavior of psychological behavior of a person, that how he or she behave instantly. Okay. Good one. Somebody else? Anyone else? मैम मैम एक हाँ रितिका बोलो, आप बोलो. मैम personality is something how someone reacted to different situations, deal with the situations. Okay. मैम इंसान का कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर जो एक इंसान को दूसरे इंसान मतलब अलग अलग होता है सबका, तो personalities are different, it differs to person. Correct. So that means you're trying to talk about the behavior, how a person would react. Correct? हाँ जी मैम. Okay. और कोई? Good answer. और कोई? आज बॉयज कहाँ है? डॉक्टर उज्जवल? यस मैम, जस्ट ज्वाइन किया तो सोच रहा हूँ मैं अभी. हाँ बताओ, कोई नहीं, सोच लो. तब तक और कौन बताएगा मुझे? नदीम? मैम, एज ए ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली कैसे बिहेव करता है, एनवायरनमेंट से कैसे एडजस्ट करता है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो जनरली जो हम बात कर रहे हैं, मोटा मोटी अगर हम नटशेल में बात करें कि बिहेवियर हम कैसे रिएक्ट करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में या हमारे एनवायरनमेंट के साथ. सो दैट मीन्स ये ओवरऑल आपके अंदर के जो आपके ट्रेट्स हैं, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको मिलाकर आप एक
बिहेवियर डेवलप करते हो जो आपके एनवायरनमेंट में आप उसको देते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन है आपके ऑफिस में, राइट? सो योर पर्सनालिटी इज लाइक, यू आर वेरी कॉम्पिटिटिव, यू आर एक्सट्रोवर्ट, you would always like to interact with people, you would always like to take an opportunity and grasp it, perform. So ये आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स है। अब उसके बाद जब आपके पास अपॉर्चुनिटी सामने आई, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प किया, अकॉर्डिंगली आपने अपना काम किया एंड देन आपने प्रेजेंट किया। सो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बाद आपके थॉट प्रोसेस, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स और आपकी अपॉर्चुनिटी, उन सबको मिला के जो आपका आउटपुट आया, दैट इज योर बिहेवियर, योर प्रेजेंटेशन, that is your actually a personality which you are giving to the environment, means to society, to organization, to your group of people, to your friends. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो अभी हमारे पास एक डेफिनेशन भी है गॉर्डन ऑल्पर्ट की। पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। सो व्हाई वी आर सेइंग यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट, मींस कि जिस सिचुएशन में हमें रखा जाता है, जिस सिचुएशन में हम लोग एंटर करते हैं, मतलब हम जो काम कर रहे हैं या हम किसी नई टीम में जाते हैं या हमें कोई नया टास्क दे दिया जाता है या नए लोकेशन पे भेज दिया जाता है, वहां जाकर हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स किस तरह का आउटपुट देंगी, हम कैसे एडजस्ट करेंगे उस तरह के एनवायरनमेंट को, जो दैट इज योर पर्सनालिटी। Then Feast and Feast said personality is a pattern of relatively permanent traits and unique characteristics that give both consistency and individuality to a person's behavior. So Feast and Feast ने क्या बोला कि पर्सनालिटी खुद में एक relatively कुछ आपके परमानेंट ट्रेट्स हैं जो आपके विद इन होते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे आपका एक बिहेवियर डेवलप होता है। एंड देन एक और डेफिनेशन है which says the integration of the socio psychological behavior of the human being represented by habits of action and feeling, attitudes and opinion, means ये बोल रहे हैं कि आपका सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, उसको कॉम्बिनेशन जो बोलते हैं ह्यूमन बीइंग का, मतलब उन ट्रेट्स का, वो हमारे एक्शंस ऑफ हैबिट्स एंड देन फीलिंग्स और एटीट्यूड्स, ओपिनियन, ये सारी चीजें जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आउटपुट दे रहा है, दैट इज योर पर्सनैलिटी। ठीक है, आप इसमें से ना कोई भी मतलब ऐसे तो जनरली सब्जेक्टिव पेपर नहीं आता, मतलब नहीं, लास्ट पैटर्न्स के हिसाब से बता रही हूँ, इस बार का मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। आप लोगों की कुछ बात हुई है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पेपर विल बी देयर, लाइक व्हाट विल बी द पैटर्न? नहीं मैम। नहीं मैम, नहीं, अभी तो नहीं हुआ। पास क्वेश्चन पेपर्स देखे, मिला है कुछ लास्ट ईयर का? नहीं नहीं मैम, नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ, अगर भाभी मैं देखती हूँ अगर 5-10 मिनट में कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ निकल के आता है तो। ठीक है, अच्छा, ओके। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई मेरी पर्सनालिटी के खुद के ट्रेट्स हो गए, बिहेवियर हो गया, जो मैंने रिएक्ट किया अपने अपने हैबिट्स पर के बेसिस पे, अपने बिहेवियर के बेसिस पे। अभी हम इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि जब भी आप लोग प्रोफेशनली अपने लेवल ऑफ अच्छे जॉब्स में पहुंच जाओगे, मतलब देखो, इनिशियली जब आप अपना कोई करियर स्टार्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां फिर आप डूअर होते हैं। डूअर का मतलब क्या है कि आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब लेटर ऑन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल से आप मैनेजरियल लेवल पे जाते हैं, तो यू हैव टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम अ, सो यू बिकम अ मैनेजर, करेक्ट, यू हैव टू मैनेज। तब जब हमें मैनेजमेंट अपनी रखनी है, तो ऑब्वियसली हमारा पीपल मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, करेक्ट? yes मैम। Right, because we'll be having Yes. more people under us, we'll be having more departments, we'll be having more a bigger span of control. Span of control मैंने बताया था ना कि एक मैनेजर के अंडर कितने आपके
जूनियर्स रहते हैं, फॉलोअर्स रहते हैं, कितनी बड़ी टीम रहती है, दैट इज योर स्पैन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, अब जब पर्सनालिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेसिकली क्या है कि हमें लोगों का बिहेवियर इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हुए चलना है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आए वो एक डिफाइंड मैनर में लोगों से आने लगे। मतलब उनकी पर्सनालिटी को या उनके आ, आ, उनकी पर्सनालिटी को या उनके ट्रेट्स को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना सो दैट मेरा रिक्वायर्ड बिहेवियरल आउटपुट मीट हो जाए, दैट इज योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लेकिन ज्यादातर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं या हमारी अपनी खुद की पर्सनालिटी जो शाइन करती है, डेवलप करती है, वो जनरली हमारे काफी सारे वेरिएबल से, काफी सारे डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से करती है। जैसे आपका जेनेटिक्स क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला, किस तरह की पेरेंटिंग रही, किस तरह के आप ग्रुप्स का पार्ट रहे, किस तरह का आपका फ्रेंड सर्कल रहा, किस तरह के आपके सोशल ग्रुप्स रहे। तो इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से आपकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है, डेवलप होती है। ठीक है। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? आई वांट somebody to read these two paragraphs for me, this one and this one, because I have a bad throat, very bad throat today. Will read this for me? कौन पढ़ेगा? Guys, am I sounding okay to you people? Are you able to understand what I'm Yes, speaking? yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, because you know I'm having cold, तो उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मैम आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम लोगों को समझ में आना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ। यस यस यस। ठीक है, चलो कौन पढ़ेगा फटाफट से? कौन पढ़ेगा? डॉक्टर उज्जवल, वुड यू लाइक टू रीड दिस? ओके मैम, नो प्रॉब्लम। हम्म। मैम व्हाट इज मीन बाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ से? हाँ जी, हाँ जी। Okay, ma'am. Personality development refers to how the organized patterns of behavior that make up each person's unique personality emerge over time. Many factors go into influencing personality, including genetics, environment, parenting, and social variables. Personality development is defined as a process of developing and enhancing one's personality. Personality development helps an individual to gain confidence and high self-esteem. Personality development also is said to have a positive impact on one's communication skill and the way he sees the world. Beyond this basic point of agreement, personality has other characteristics or features in common. Personality is something which is unique in each individual. Personality refers particularly to the persistent qualities of an individual. Personality represents a dynamic orientation of an organism to the environment. Personality is greatly influenced by social interactions. Personality represents a unique organization of persistent, dynamic, and social predisposition. Consistency, psychological and physiological. It impacts behaviors and actions. Multiple expression. Personality is something which is unique in each individual. Personality refers to internal as well as external qualities, some of which are quite general, but it is unique to each individual. It is not possible for a person to reproduce or imitate the qualities of the personality of another person. Personality refers particularly to persistent qualities of an individual. Every individual has certain feeling as well as other permanent traits and qualities. Personality is mainly composed of the persistent or permanent qualities that exhibit themselves in form of social behavior and attempt to make an adjustment with the environment.
Personality represents. hold. Yes, ma'am. ओके सो अच्छा, सबसे पहले अभी हम ऊपर वाला पार्ट जो है खत्म करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा है, हमने बोला कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट मींस कि कैसे हम लोग बिहेव करेंगे इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, है ना। और हम लोगों ने Yes, ma'am. फैक्टर्स के बारे में बात करी जो पर्सनालिटी हमें इम्पैक्ट करेगी, हमारे जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, पेरेंटिंग और सोशल वेरिएबल्स। ठीक है। मैम ये हम लोगों का भी जॉब ओरिएंटेशन में जब हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी खुद के लिए ये भी अप्लाई करेंगे ना। हाँ बिल्कुल अप्लाई करेगा ये सब, ओके। क्योंकि क्योंकि देखो आपका इंडिविजुअल ट्रेट्स, आपका बिहेवियर, आपकी लर्निंग, आपका सोशल ग्रुप, ये सारी चीजों से आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है ना। बिकॉज आप कितने टारगेट ओरिएंटेड होते हो लाइफ में, कितने प्रोफेशनल होते हो, कितने एम्बिशियस होते हो, ये सारे फैक्टर्स आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करते हैं। Yes, yes. Correct. And accordingly, once you start growing, definitely you'll have to develop your personality also. Correct है? Yes, ma'am. Yes. Am I correct, girls? Drishti, Yes, Himani? ma'am. Okay. Acha, any one of you have come across any role wherein you exactly have worked on it? Like I mean, not only your personality, or maybe on the group, or some sort of group behavior, or controlling the group, influencing the group, something like that. कभी किया है किसी ने? नहीं मैम, नहीं, मैंने तो नहीं किया। Among girls? नहीं मैम, मैंने भी नहीं किया है। नहीं किया। ओके अच्छा, और इसमें जैसे कभी स्कूल में या कॉलेज में कभी ऐसा होता था कि हम मॉनिटर करते थे, या हम कोई ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे, या ग्रुप को किसी मैम बोल देते हैं कि ये 5 बच्चों का आपने ये चेक करना है, एंड देन यू हैव टू गिव मी द स्टेटस, ऐसा कभी हुआ है? एक्चुअली मैम हम लोगों का जब मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ते थे तब हाँ। मेडिसिन एक पार्ट था, तो तभी एक ग्रुप पीएससी लेवल पे 1 मंथ का ट्रेनिंग चल रहा था, तो तभी ओके हम लोगों ने ग्रुप में काम किया, तभी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये वर्ड तभी सुना, हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी, उन पर्सनालिटी, ये हम लोगों का सर वो जो सेमिनार कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज करने के लिए तभी मैंने ये वर्ड भी सुना था। अच्छा ओके ठीक है। तो उस टाइम पर ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ क्लिक किया है, या ऐसा कुछ बिकॉज आई टेल यू व्हाई मैं क्यों पूछ रही हूँ क्वेश्चंस, कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो कर जाते हैं, या जैसे जैसे हमारी एज डेवलप होती है, हम थोड़े से कंट्रोल्ड हो जाते हैं, राइट। और हमें थोड़ा अपने बारे में समझ में आने लग जाता है, हमें ग्रुप के बारे में समझ। लेकिन जब हम बहुत यंग होते हैं, जैसे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे, हमारे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी होते हैं, यस यस मैम, एग्जैक्टली। या लोगों के भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होते हैं। तो हैव यू कम अक्रॉस एनी सच बिहेवियर व्हिच इज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, अनएक्सपेक्टेड, एंड देन इट हैज हैपेंड? कोई ऐसा इंस्टेंस या कोई ऐसा बिहेवियर पैटर्न जो आपने देखा हो, व्हिच यू वांट टू शेयर विद अस? एक्चुअली मैम ये जॉब में अभी मिला, बट तभी स्टूडेंट लाइफ में नहीं सोचा था, बट अभी ये जॉब ओरिएंटेशन में जब जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जब कोई चीज को लीडिंग कर रहा हूँ, कोई नोडल ऑफिसर होके काम कर रहा हूँ, तो तब मैंने सोचा मैम ये मैंने जब कोई काम नहीं होता था ना, तो हम लोग जब विजिट में जाते हैं तो ये डिफॉल्ट रहा, ये डिफॉल्ट रहा, ये सारी चीज प्रॉब्लम रहा, ये ठीक नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने खुद को डिसाइड किया जो मैं उसी बंदे को कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ बैड बिहेवियर नहीं करूंगा, मेरा काम से प्रॉब्लम है, मैं काम कैसे उसका से उतराऊंगा, ये मैं सोचा, तो तब मैंने सोचा जो अच्छे बिहेवियर करो, मैंने डिसाइड किया, कोई का इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई जो उसका नहीं कुछ बैड इम्प्रेस दो, कुछ सोकॉज नोटिस दो, जस्ट गुड बिहेवियर
एंड उसका जो प्रॉब्लम है क्यों नहीं सॉल्व किया, किस चीज से प्रॉब्लम हो रहा है, किस पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है, ये पहले जस्टिफाई करो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो मैंने ये काम पे मैंने वर्किंग लाइफ में सोचा है, 3 to 4 years वर्किंग लाइफ में मैंने ये डिसाइड किया। तो अच्छे बिहेवियर से वो काम वो भी हो गया, वो कंप्लीट भी हो गया। 1 to 3 months आफ्टर नेक्स्ट विजिट में जब किया तो वो कंप्लीट कर दिया। तो ये मैंने सोचा जब पहले वाला लोग में वहाँ पे क्रिटिकल प्लेसेस है, बहुत सारे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट होता है, पीएससी होता है, प्लेस होता है, जब काम ठीक से नहीं आता है, मॉर्टलिटी रेट खूब हाई हो जाता है, मॉर्बिडिटी रेट भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसी प्लेस में मैंने सोचा काम करने के बहुत अच्छे आ रहा है, जो गुड बिहेवियर है। अच्छा, अब since you know COVID is again spreading, है ना, and if Yes, yes. any one of you probably most of you must be associated with medical institutions, hospital या फिर जो भी आपके any other institution which supports medical and such sort of services, there also you will you know come across a lot of unexpected behavior, right? Yes, 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 है ma'am. ना? तो Yes. उसमें भी जब आप आपने देखा होगा ऐसी सिचुएशंस आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेशेंट के अटेंडेंट से बात करने जा रहे हो या सोचते हो, तो आप पहले देखोगे ना, यार ये सामने वाला बंदा कैसे है, पहले मैं इससे क्या बात करूं, उसको कैसे समझाऊं, या ऐसे मैं कैसे इस चीज के बारे में गाइड करूं, करेक्ट? Yes, तो yes, yes. वो वहां पर आपको थोड़ा सा उनके बिहेवियर पैटर्न्स को या पर्सनालिटी को स्टडी करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, करेक्ट? Yes, Correct. yes. So there again, your learning, your understanding on personality will be important. Okay, that is why I have asked this question from you all. Drishti, any such experience in past? मैम कोविड के टाइम में तो वैसे भी बहुत रश होता है हॉस्पिटल में, तो हाँ मैम, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर तो सीनियर्स से तो ऑफ कोर्स, अब इन दैट केस द ऑपोजिट पर्सन हैव टू अंडरस्टैंड दैट की सिचुएशन ही ऐसा है कि थोड़ा बहुत मतलब डांट पड़ जाता है, तो यही ऐसा ही, इतना कुछ सीरियस कुछ नहीं कभी मतलब एक्सपीरियंस किया मैंने। तो ज्यादातर कैसा किस तरह का बिहेवियर पैटर्न मतलब मिलेगा आपको देखने को या मिलता है ऐसी सिचुएशन में? मैम वैसा ही कि तुमको ये करने के लिए बोला था, तुमने क्यों नहीं किया, ऐसे ही थोड़ा बहुत डांट पड़ना है, ऐसा ही, मतलब इतना भी कुछ नहीं खास। Okay, so you'll find anxious people, you'll find impatient people, right? हाँ But मैम, वो तो हाँ 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 हाँ, वो तो है। वो उस तरह के आपको मिलेंगे। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे केसेस में ना the best way to solve such situation is to first understand their व्हाट इज द सिचुएशन, what मतलब is the क्या प्रॉब्लम situation. है, उनका क्या क्वेरी है या उनका क्या प्रॉब्लम है। हाँ. वैसे भी होता है कि जैसे कि पेशेंट के घर वाले आए हैं और ऑफ कोर्स वो तो बहुत मतलब इमोशन उनके हाथ पीक तक होता है एकदम उस टाइम में, और दे आर वेरी कंसर्न अबाउट जो मतलब उनका जो वो है घर वाला है, सपोज किसी का मम्मी या patient. भैया। हाँ, तो उस टाइम में अगर अब एक नर्स के लिए एक पेशेंट तो होता नहीं है, एक नर्स को 3-4 पेशेंट देखना होता है। अब सपोज उनको लग रहा होगा कि हम उन पर्टिकुलर पेशेंट का जो उसका मम्मी या भैया उनका केयर नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो उस टाइम में भी थोड़ा बहुत बिहेवियर, बट आई थिंक कि ये समझने वाली बात है, क्योंकि उस टाइम में आके हमको भी बुरा लगता है कि वो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं, बट जब ये चीजें पूरा थोड़ा बहुत काम हो जाता है, तब इफ आई सिट एंड इफ आई थिंक, अगर मेरी मम्मी या मेरा भैया भी होता वहां पे और मैं भी अगर देखती कि आसपास में कोई नर्स या डॉक्टर नहीं है और वो उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो शायद मैं भी वैसे ही बिहेव करती। मैं भी शायद उनको ऐसे ही बोलती कि आप लोग क्यों ऐसे देखभाल नहीं कर रहे हो, कैसे नर्स हो आप, ऐसे तो थोड़ा बहुत तो सुनने को मिलता ही है। ओके, सो व्हाट इज लाइक, सो तो ये आपने सुन लिया या आपने इस तरह के लोगों को फेस किया, सो व्हाट इज वे आउट? अच्छा चलो, फॉर एग्जांपल आपको मैंने सिचुएशन दी, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू, आई वांट इनपुट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। फॉर एग्जांपल
कोई कोविड इस तरह की जैसे कोविड सिचुएशन आई, ठीक है, जहाँ पे अगेन नए नए स्ट्रेन्स मिल रहे हैं, ठीक है, लोग एडमिट हो रहे हैं, उनकी फैमिली साथ में होती है या पूछने भागती है आप लोगों से। अब उस टाइम पर आपने ये देखा कि एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल इज वेरी एंशियस एंड एंग्री with you all, right? With the system, with the hospital. Now, how will you deal with that situation? मैम बात करेंगे, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट की। बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप थोड़ा सब्र रखो, या जो भी हो वही बात करेंगे। और क्या मतलब, और सीनियर को कंप्लेन करने को कुछ है नहीं इसमें, और कुछ मिलने भी नहीं वाला है। तो क्या उनसे ही बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप थोड़ा काम रहो, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, यही। और क्या मतलब, मेरे हिसाब से मैं होती तो मैं तो यही करती, उनसे बात करती। ये आप पूरे ग्रुप को समझाओगे, है ना? हाँ जी। मैम मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, हाँ। बट उसका पहले उसका वो तो उसका जो साइड इफेक्ट वो भी नहीं पता है। वो लोग माने ऐसे सोचते हैं उसका भी नॉलेज, जो प्रॉब्लम हुआ जैसे ओमिक्रॉन का स्टेज, पहले कोविड-19 सिचुएशन को, कोविड-19 जब हॉस्पिटल में लोग एडमिट हो रहा है, लोग मर रहे, ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी नहीं चल रहा है, नहीं था, तब ऑलरेडी हॉस्पिटल में बेड भी नहीं है, पेशेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। तो तभी पेशेंट का एक्चुअली क्या होता है मैम, मैंने ये कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी किया तब सोचा एक्चुअली वो लोग का जो इस डिजीज का डेप नहीं है, वो जानते नहीं है। जे ये वो लोग बात हो रहा है, न्यूज पे हो रहा है, बोल रहा है जे ऐसे ऐसे फैल रहा है, ऐसे यस मैम, दे गेट ना स्केयर्ड। हाँ, सही बोल रहे हैं डॉक्टर उज्जवल जी। जस्ट सपोर्ट इट एंड इसका जो मैंने कैसे बोलूं मैम, डेथली सिचुएशन जो वो सबका नहीं आता है। जो पीपल को जैसे बंदा 60 अबव उसके बिलो जो इफेक्टेड हो रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले उसका सॉन मैंने इमोशन को पास देना चाहिए। उसका बोल रहा जस्ट आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं आपको सब ठीक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट डॉक्टर्स अभी इस सिचुएशन में ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं क्या, ऐसा कि हम हैं, हम कर लेंगे ऐसा करके? ना मैम हम लोग तो दे रहे हैं। हम पहले भी एक दिन एक डॉक्टर 3 आवर्स 100 अबव कोविड पेशेंट को डील किया, तो 14 डेज तो तभी मैम मेरा 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 जो जितना कॉन्सेप्ट है मैडम, मेरा जितना नॉलेज है, डॉक्टर्स कभी भी सामने नहीं आते, कभी भी नहीं आते। वो नर्सेस को ही आगे कर देते हैं बात करने के लिए। दे नेवर टॉक, कभी भी बात नहीं करते वो। और आप ये भी बोल सकते हो कि वो बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट हमेशा नहीं देखना नहीं पड़ता है मैडम, उनको। मैडम ये बात ठीक नहीं है। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं ना, अब होते हैं, ज्यादा से ज्यादा होते हैं, नहीं बोलूंगा, बट मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। क्योंकि एक्चुअली मैम बहुत सारे पेशेंट आते हैं, किसी को पहले भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, तो पहले भी उसका कैसे नेबुलाइजर दूं, कैसे डोज दूं, वही सब मेंशन करने के लिए नॉर्मल पेशेंट को गाइड नहीं दे पाऊंगा। इमरजेंसी तो पहले देखना चाहिए ना मैडम। तो तभी क्या बोलता हूँ हाँ मैं, हाँ, दैट सिस्टर इज आप व्हाट आई एम देख सेइंग लो। कि उन लोगों का भी मतलब मजबूरी है, उनको भी देखना पड़ता है दूसरा पेशेंट। तो हमेशा फैमिली वालों से या उनके साथ जो आए, पेशेंट के साथ जो आए, उनके साथ बात करने के लिए नर्सेस ही आगे होते हैं हमेशा। नहीं नहीं, उनको ये ही तो डील करना पड़ता है ये। 100% राइट है। क्योंकि मैम सब जगह में यही नहीं होता है, तो बहुत सारे डॉक्टर भी मिसबिहेव करते हैं बहुत पेशेंट के साथ, बहुत पेशेंट की फैमिली के साथ। हम लोगों का कॉलीग भी है, ऐसे ऐसे है, सब है, सब मिलके चल रहा है। मैम मेरे हिसाब से उसका सपोर्ट देना चाहिए, जो आप लोग आपका कुछ नहीं होगा, पहले डर को भगाओ। उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं कोविड में, कुछ ऐसे तो कुछ मेडिसिन हम लोगों के पास नहीं है। जब वैक्सीन की पहले प्लेन पैरासीटामोल भी है, और जो कुछ ड्रग्स आया था उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। तो हम लोग ऐसे भी ठीक करते हैं, जस्ट मेंटल काउंसलिंग, जो आपको कुछ नहीं होगा, जो यही 90% रिकवर हो गया। तो ये तो तुमने मुझे आंसर दिया कि कोविड के पेशेंट्स को हाल। मेरा क्वेश्चन ये है
कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें अराउंड 50, 60, 100 पीपल है और they are very very angry and just shouting in the hospital, now how will you deal with that situation? इसके बारे में सोचो, सोच के देखो, इमेजिन करो पूरे हॉस्पिटल के अंदर हाहाकार मच जाती है ना, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? गुड पॉइंट मैम। रितिका बताइए। रितिका, टेक 5 minutes, think about it and answer this. उसके बाद we all will also participate. पहले मुझे रितिका से देखना है कंट्रीब्यूशन है। रितिका, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, think about it. 5 मिनट लो। इसी में जो अभी हमने पढ़ा है ना, पर्सनालिटी जितना मैंने बताया, उसको अप्लाई करके कुछ सोचो। मैम आई थिंक जो उस ग्रुप में जो रिस्पॉन्सिव पीपल होंगे, हमें उन्हें काम डाउन करने की ट्राई करनी चाहिए, उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे पता चलेगा रिस्पॉन्सिव है या नहीं है? यस, दिस इज द पॉइंट। पर कैसे पता चलेगा रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, या रिस्पॉन्सिव है या नहीं है? नदीम, या मैम। आप बताओ। उनके मेंटेलिटी को मैम ये डेवलप करना पड़ेगा कि ये मतलब सिचुएशन के हिसाब से डील करना पड़ेगा मैम। मेंटालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से डील करना पड़ेगा। ओके, डॉक्टर उज्जवल, व्हाट डू यू से? मैं ये सीखना चाहूंगा क्योंकि मैं ये बहुत प्रॉब्लम सिंकेट करता है, ये कैसे हैंडल करना है ये मेरे जानना चाहिए। गुड पॉइंट। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, चलो अभी इस पे बात करेंगे। दृष्टि, एनी इनपुट फ्रॉम योर साइड? मैम वही बातें करेंगे, बट ऑन द अदर हैंड बातें करेंगे तो वो अगर 50-60 लोग होंगे तो वो बातें सुनेंगे भी नहीं, वो भी है, तो मैं कुछ सोच नहीं पा रही। ओके ओके, चलो मैं आपको ये बताती हूँ। ऑल्दो थोड़ा सा टफ होता है ये वाली सिचुएशन को हैंडल करना, बट उसका एक टेक्निकली ये तरीका जो अपनाया जाता है वो ये है, जब आपके पास मास ग्रुप रहता है ना हैंडल करने के लिए, आप मास ग्रुप को समझाने जाओगे आप नहीं समझा पाओगे। क्योंकि आई टेल यू वन थिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मास ग्रुप के सामने कोई स्टेटमेंट रखी, मैं या फिर मैं उनको पैसिफाई करने की कोशिश मैम कर रही हूँ ना। जस्ट मिनट मैम, ये हाँ जो हाँ, मार्क्स बोल रहे हैं ये कौन सा सिक्योरिटी? नहीं, वो लोग जो हॉस्पिटल के अंदर अपसेट है आप लोगों से, जिनके आपको अनएक्सपेक्टेड या एंशियस बिहेवियर आपको मिल रहा है, या वो पूरे हॉस्पिटल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या वो लोग किसी काम से खुश नहीं है आप लोगों के, या पैनिक में है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको उनको हैंडल करना है। चाहे वो कुछ कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है वो सिक्योरिटी की पूरी टीम हो सकता है वो आउटसाइडर्स हो सकता है वो पेशेंट्स के अटेंडीज हो सकता है वो पेशेंट का क्यू हो, जो पेशेंट वहां पे पहुंचे हुए हैं, है ना, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जब आपको मासेस को हैंडल करना होता है, और ये खाली हॉस्पिटल की बात नहीं है, स्पेशली ये आपको पता है ये चीज आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? फैक्ट्रीज में, जहाँ पे वर्कर्स सीधा सीधा स्ट्राइक पे चले जाते हैं। एक तो वो वैसे ही इलिटरेट या सेमी इलिटरेट होते हैं, एंड सेकेंडली they are not ready to listen. So in that case, how will you handle people? You will not be going to deal with the mass. You rather will be talking to some individuals, or the best way is to call upon few people among the group and speak to them.
जो जनरली आपको फैक्ट्रीज में मिलेगा। हॉस्पिटल्स में भी अगर आपकी बात करें तो हॉस्पिटल्स में भी लाइक आई मीन हाउ विल यू डील विद इट, यू विल बी ट्राइंग टू फर्स्ट ऑब्जर्व पीपल देयर। मतलब आपको इंडिविजुअली सामने से एकदम जाके बात ना करके पहले आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहिए पर्सनालिटीज को, लाइक हाउ पीपल आर बिहेविंग। जैसे कुछ लोग आपको बहुत शाउट करते हुए मिलेंगे, कुछ लोग बहुत आपको वहाँ पे थोड़े से स्टेबल मिलेंगे, कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत पैनिक हुए हुए हैं। तो आप उनको आइडेंटिफाई करके यू ट्राई टू कांटेक्ट देम, स्पीक टू देम और सेंड समबडी टू स्पीक टू देम, पैसिफाई देम, एंड देन धीरे धीरे वो फिर 4 लोगों को और पैसिफाई करेंगे, फिर 4-8 को, और ऐसे करके आपका पूरा ग्रुप पैसिफाई होता है। सो दैट इज द वे। सो उसके लिए आपको सबसे पहले खुद ही पर्सनालिटी को रीड आउट करना आना चाहिए, उनके ट्रेट्स को रीड आउट करना आना चाहिए, उनकी बिहेवियर पैटर्न को रीड आउट करना आना चाहिए। सो इफ देयर बिहेवियर पैटर्न इज सच wherein they are reacting so much, you may not be able to speak, but then some of them you will definitely, और even कुछ लोग ऐसे लगे मिलेंगे आपको जो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे भी अलग से बात कर सकते हो। समझ में आया? ग्रुप में बात करने जाओगे तो यू विल नेवर गेट अ सॉल्यूशन एट फर्स्ट स्टेज। इंडिविजुअली से 2-3 लोगों जैसे आपने केबिन में बुलाया, उनसे बात करी, आराम से बात करी, उसके बाद वो आगे ग्रुप, वो अगर सेटिस्फाई होते हैं वो ग्रुप को सेटिस्फाई कर देंगे। क्लियर हुआ अभी? मैम ये तो यस मैनेजमेंट मैम। का एक्चुअली मैम जो होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड पेशेंट डेथ हो गया, वो लोग तो आके फास्ट मरना शुरू कर देते हैं, तभी कितना टाइम मिलेगा मैम? पेशेंट अगर क्या हो गया, डेथ हो गया, डेथ कुछ हो गया, होता हाँ है हाँ, देखो आफ्टर। वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इनिशियली तो आपको इमोशनल पैनिक जो है बियर करना ही पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि देखो उसका सोल्यूशन मुश्किल है। रीजन बीइंग व्हेन पीपल लूज देयर फैमिली, है ना, तो वो एक यस ऐसी सिचुएशन होती है जो कि डेफिनेटली कोई कितना भी बैलेंस हो लाइफ में वो उसको हिला देती है, राइट? कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी समझदार हो, बट वो मेंटल ट्रॉमा ऐसा है जो सामने वाले को पूरा शेक कर देता है, पूरा डिस्टर्ब कर देता है, करेक्ट? शैटर्ड हो जाते हैं लोग। यस लेकिन यस उन सिचुएशंस को भी हैंडल करने का जो तरीका है वो ये है, देखो जैसे अगर डेथ हो जाती है, उनकी फैमिली बहुत ज्यादा फिर नॉइस कर रही है, गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए आपको सिचुएशन को इग्नोर करना पड़ेगा, लाइक यू विल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। You may be keeping an eye on it, but from a place wherein people may not be watching you, but you would be watching that group. Correct? I'm giving you the understanding from a यस personality यस यस मैम, aspects. यस यस। Correct? Then try to observe that group, that family. उसमें कोई ना कोई आपको definitely ऐसी personality मिलेगी जो थोड़ा सा, जिसका bearing capacity दूसरों से थोड़ी सी ज्यादा हो, जो उस लॉस को एक्सेप्टेंस जल्दी दे रहा हो। फिर आप उनसे जाके बात कर सकते हो कि देखो सो एंड सो वाज द सिचुएशन, सो एंड सो वाज द मेडिकेशन, हाउएवर द पर्सन कुड नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस। जैसे अगर किसी का कुछ पहले से कुछ प्रॉब्लम है, या एज फैक्टर है, या या बॉडी में कोई पार्ट बहुत ज्यादा उस डैमेज लेवल पे आया है आपके पास, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से सर्वाइवल के रेट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपकी पर्सनालिटी से आपको आइडेंटिफाई करने को मिलती है। करेक्ट? सो देयर इन योर रीडिंग अमंग द पीपल पर्सनालिटीज विल इम्पैक्ट यू एंड योर वर्क ऑल्सो। दैट इज वाई ये जो सब्जेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? क्लियर हुआ गाइस? सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर हुई? क्योंकि यस मैम। ये जो दो सिचुएशंस की हमने बात करी है ये क्वाइट ऑफन है हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है? यस यस मैम, यस। करेक्ट। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। सो
पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो चाहे वो दूसरों के लिए कहें या अपने लिए कहें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड एनहांसिंग वन Okay, so when we talk about personality development, so it refers to how uh, 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 how do you organize a particular behavior pattern in order to reach a level or in order to reach out a required output, जिसमें आपके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जैसे कि आपको उनका कॉन्फिडेंस एनहांस कराना है, आपको सेल्फ स्टीम एनहांस करानी है, आपको उनके बिहेवियर में पॉजिटिविटी लानी है, आपको उनके कम्युनिकेशन को क्लियर करना है। तो ये सारे फैक्टर्स, इन सारे डेवलपमेंट्स पे जब हम बात करते हैं, दैट लीड्स टू ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोगों ने अभी कॉमन फीचर्स पढ़े हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं पर्सनालिटी समथिंग विच इज यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। हमने भी बात करी कि जो पर्सनालिटी है बेसिकली आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्वालिटीज को मिला के है, राइट। सो कि कभी भी ये पॉसिबल नहीं है for a person to reproduce or imitate the qualities of the personality of other. So when we say imitate the personality of other, as in like, I mean, two people may not be completely same. Everybody would have some unique personality or unique qualities or traits which will make him or her different among the group or different from other person. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सब में कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो हमारे पर्सनालिटी को या फिर जो हमें हमारी एक पर्सनालिटी को दर्शाता है, प्रेजेंट करता है। सो सब में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट क्वालिटीज या ट्रेट्स मिलेंगे विच विल लीड टू अ सेट ऑफ अ पर्सनालिटी, अ सेट ऑफ अ पर्सन और अ trait of a person or a expression of a person or a I would say behavior of a person, right? तो सभी लोगों में कुछ ना कुछ आपको यूनिक ट्रेट्स मिलेंगे। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि पर्सनालिटी रेफर्स पर्टिकुलरली टू परसिस्टेंट क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, तो जब हम बात करते हैं, जब भी हम पर्सनालिटी की स्टडी करेंगे या जब भी हम लोग पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं किसी भी पर्सन की सॉरी, ऑल्दो हम सब के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट ट्रेट्स होते हैं या बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, लेकिन जनरली जब हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, जब भी किसी की पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ट्रेट। फॉर एग्जांपल, हम बोलते हैं कि भैया इस पे that person is very extrovert, that person is introvert, that person is
hardworking, that person is very determined, or that person is very smart. So that means we are generally talking about a couple of traits, or a particular traits, which basically have a very big influence on a personality or on a person, and the person will be represented by that trait. Sorry. Hmm. So एग्जाम्पल दो जनरली, जब आप अपने ऑफिस में होते हो या आप हॉस्पिटल में होते हो, what kind of personality traits generally you observe high in a people, then you more in a people, and then you define that person with that trait in your professional environment. Is my question clear? नहीं. मैम फिर से बोलिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है, किस तरह के जनरली पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको आपके ऑफिस में देखने को मिलते हैं, जिससे आप एक पर्सन की ओवरऑल इंडिविजुअलिटी को उससे रिलेट करते हो? जैसे मैंने बोला कि दृष्टि इज वेरी क्विक, प्रोएक्टिव, पर दृष्टि के अंदर और भी तो बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज होंगी ना उसकी पर्सनालिटी में। वो हार्ड वर्किंग भी होगी, वो स्मार्ट भी हो सकती है, वो डिटरमिन भी हो सकती है, वो क्रिएटिव भी हो सकती है, राइट? बट एज पर हर बिहेवियरल पैटर्न और अ रिप्रेजेंटेशन इन दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर दृष्टि हमें जो आंसर्स दे रही है, प्रोएक्टिवनेस दिखा रही है, सो अकॉर्डिंगली माय रीडिंग इज दैट दृष्टि इज क्वाइट प्रोएक्टिव। तो मैंने उसकी पर्सनालिटी के ऊपर जो ये वाला ट्रेट है प्रोएक्टिव का, वो उसका ज्यादा आगे पड़ा, वो आगे ज्यादा देखा, राइट? सो ऐसे ही जब आप अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हो, व्हेन यू डील विद पीपल, व्हेन यू डील विद पर्सनालिटीज, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट traits that basically you see in a people which has more influence or more component in terms of defining a individual? That's my question. अभी समझ में आया सवाल? हाँ जी। सवाल क्लियर है टू माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स? नदीम, या मैम? सवाल क्लियर है या सवाल समझ में नहीं आया? नहीं मैम, समझ में आ गया है। अच्छा, वही ठीक ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, सोचो सोचो सोचो। फ्रॉम सी, व्हाई आई एम टेलिंग यू टू थिंक थ्रू, बिकॉज अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि इट मे नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बिलीव मी, कुछ दो चार साल के अंदर ही इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, और फिर अगर आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है ना, तो बहुत आप चीजें अच्छे से हैंडल कर पाओगे। इसलिए योर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Think about it. Take 5 minutes. Understand. No problem.
सो सोच लिया सबने? My silent group. Nadeem, will you be interested in answering this question? हिमानी, अच्छा हिमानी का तो प्रॉब्लम है अभी उसमें। Who will answer this? यस मैम। मैम अच्छा हाँ बोलो। हाँ मैम, ऐसे कंडीशन में ना मतलब ऐसी पर्सनालिटी को देखते हैं जो एक तो कम्युनिकेशन क्लियर करे। ओके जैसे कि अगर वो ग्रुप से डील कर रहा है या इंडिविजुअल से डील कर रहा है, तो जो वो मैसेज पास करना चाहता है हाँ वो एग्जैक्टली क्लियर हो। हाँ, तो that means the one और first trait which is again very, मतलब हिमानी has pointed a very good and important point here कि जब भी आपको मास से डील करना है या आपको प्रोफेशनली अपनी टीम्स के साथ डील करना है, you will definitely identify a personality who is very clear with the communication. उसके बाद मैम दूसरा वो इंटरेक्टिंग हो, मतलब एज सच उसका वो डिपार्टमेंट है या नहीं है, अगर उसके सामने कोई क्वेरी आती है तो वो आगे आए और अपने मतलब अपने जितना भी स्टाफ होगा उसको सपोर्ट करे। कि अगर उसके माइंड में है कि ये क्वेरी को मैं ऐसे क्लियर कर सकता हूँ, तो ऐसी पर्सनालिटी को हर कोई एडमायर करेगा जो इन्वॉल्व होगा। Okay, so the second important trait which Himani would like to see or would like to observe or maybe observing is a supportive role, right? Yes, First ma'am. is communicative role, second is a supportive role or supportive trait. Okay, else? और मैम उसके अलावा थोड़ा सा वो क्रिएटिव भी हो, मतलब आपका जो भी आप मतलब कम्युनिकेशन करोगे या फिर जो भी आप सपोर्ट कर रहे हो, वो जो भी मतलब जिसके लिए भी आप कर रहे हो, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो उनके मतलब जो आपके कोलीग्स हैं या फिर जो भी है, उनको एक्सेप्टेबल हो, मतलब वो एक्सेप्ट कर पाए जो भी हम एडवाइस दे रहे हैं। वो फिर क्रिएटिविटी नहीं हुई ना। हाँ जी, वो तो नहीं मैम क्रिएटिविटी, हाँ क्रिएटिविटी इन द सेंस मतलब मैं ये बोलना चाह रही कि वो एक्सेप्टेबल हो चीज जो भी वो करे, कि वो मतलब वो कर पाए। क्या बोलेंगे इसको, मतलब अपनी जो भी चीज वो बोल रहा है या फिर जो भी कर रहा है वो लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए। हाँ, तो वो एक्सेप्टेंस जो आपका है वो जो आप बोलना चाह रहे हो कि वो जो भी कर रहा है, तो वो आई थिंक दैट इज अ मिक्स ऑफ सपोर्ट एंड हम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। मैनिपुलेट कर पाए लोगों को, मतलब अच्छा, ओके ओके मतलब ओके, कि आप जो भी बोल रहे हो आर्टिकल, हाँ हाँ, मतलब वो ओके, सो मतलब पूरा जस्टिफाई कर पाए वो अपनी कंडीशंस को। हाँ, तो मतलब उसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं उसको, कि आप अच्छा। जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो वो एक तो क्लियर है, उसके पीछे एक लॉजिक भी है, तो आप लोगों को समझा पाओगे। हाँ जी मैम, ये ठीक है, ओके। मैम क्या और बोलते हैं इस वर्ड को, आर्टिकुलेशन। हाँ, आर्टिकुलेशन मीन्स कि आप कितना आर्टिकुलेटिव हो अपनी मैसेज को क्लियर कट समझाने में, लॉजिक्स के साथ, रीजंस के साथ। आप बहुत असर्टिव भी बोलते हैं उसको। असर्टिव मीन्स फर्म रहना अपनी बात पे, मतलब लोग उसको 10 आंसर्स भी दे रहे हैं तब भी वो फर्म रह के लोगों को अपनी बात को समझा देना, तो दैट इज असर्टिवनेस। ठीक है, ओके। एनी अदर इनपुट फ्रॉम माय? मैम हाँ जी। मैम फास्ट मैं तो मेरी तरफ से ओवरऑल बिहेवियर को देखूंगा, हाँ। उसकी बात हाउ ही बिहेव्स एट वर्क ड्यूरिंग वर्किंग टाइम। बट उज्जवल देखो, आप अगर किसी की पर्सनालिटी को ओवरऑल जज करने बैठ जाओगे, मतलब सारे ट्रेड्स पे चेक करने बैठ जाओगे, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि पर्सन ज्यादातर किस तरह का है? मतलब अगर आप वर्क पे भी देखते हो, तो जैसे वर्क पे भी आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे एक पर्सन के अंदर। एक बंदा हार्ड वर्किंग भी है, उसके साथ साथ वो क्रिएटिव भी होगा उसके, लेकिन कौन से ऐसे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं जो उसकी पर्सनालिटी को एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या यू विल कॉल आउट? अच्छा चलो, तो हाँ, मैम वो हाउ टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप देखोगे एक पर्सनालिटी में हाउ टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स यू विल लुक फॉर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट? यस मैम। ओके,
एंड देन कम्युनिकेशन बिहेवियर, जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग लोग को समझाने में अच्छे है। जैसे अभी हिमानी ने बताया कम्युनिकेटिव। ओके, Yes, yes. How much experience does he have about his own work? बट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ओके, तो एक्सपीरियंस आपने काम का एक्सपीरियंस कितना होगा, बट मेरा सवाल है वो तो चलो आपने एक प्रोफेशनली क्वालिफिकेशंस देखी कि हाउ मच एक्सपीरियंस, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, है ना। देन Yes, yes. हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनालिटी के ट्रेट्स की, तो एक कम्युनिकेटिव एक हमारा पर्सनालिटी ट्रेट हुआ, एक्सपीरियंस के बेसिस पे कौन सा ट्रेट निकल के आएगा वो बात करेंगे पर्सनालिटी ट्रेट में। Okay, okay, okay. आप समझ में आया हम पर्सनालिटी क्यों पढ़ रहे हैं? देखो हम पर्सनालिटी क्यों पढ़ते हैं कि इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन के बाद क्या निकल के आता है, दैट इज योर पर्सनालिटी। ओके, Yes, ma'am. Yes. तो अब बताओ, नाउ थिंक फ्रॉम दैट एस्पेक्ट। Okay, ma'am. अभी देखो दृष्टि बताएगी। दृष्टि हमारी मैम आई वुड गो विथ हिमानी, मतलब उन्होंने सही पॉइंट बोला, वही जो हिमानी ने बोला, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट कि वही कम्युनिकेशन स्किल्स हो, एंड द वर्ड यू सेड, आपने जो बोला वो assertive, articulative, okay, आर्टिकुलेटिव, यस, okay, okay. वही, दैट्स ऑल। इसके अलावा और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कुछ। आज ब्रेकफास्ट नहीं किया? हाँ। नहीं, मैं अभी कर रही थी, मैं अभी करते करते सुन रही थी। अच्छा, ओके, तो अभी ब्रेकफास्ट अभी गया है ना, तो नाउ इट विल रीच आउट टू माइंड एंड देन यू नो फ्यू पॉइंट्स विल कम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर इन, आई मीन एंजॉयिंग क्लासेस एज वेल एज योर हाँ टाइम। जी Yes, मैम, ma'am. हाँ Yes, जी, yes. बिल्कुल बिल्कुल। Obviously. ओके, 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 ठीक है। और बाकी सबका हो गया ब्रेकफास्ट? यस मैम। ओके, अच्छा हिमानी, गुड, ऑन टाइम, हाँ, वेरी नाइस। ओके, अच्छा, जैसे हमने पर्सनालिटी की बात करी, आर्टिकुलेटिव है, कम्युनिकेटिव है, असर्टिव है, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं व्हेन यू नो वी लुक एट प्रोफेशनल लेवल। कितना इसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनियस पर्सनालिटी। हार्मोनियस क्या होते हैं? जो लोग टीम के साथ घुल मिल जाते हैं ना और एक हैप्पी एनवायरनमेंट लेके चलते हैं, हाँ जी मैम। है ना, उसको कोहेसिव भी बोलते हैं, हार्मोनियस भी बोलते हैं, Yes, हार yes, हा, ma'am. हा, हार्मनी बोलते हैं ना हम लोग, है ना। अच्छा, Yes. हम लोगों को इसी के साथ साथ और भी पर्सनालिटी ट्रेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे वी विल आल्सो फाइंड पीपल हु आर इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन वो एंशियस है बहुत ज्यादा। एंशियस Yes. कैसे है? जैसे थोड़ा सा भी वर्क प्रेशर बढ़ा, थोड़ी भी नई सिचुएशन आई, थोड़े से भी चैलेंजेस आए, तो वो एकदम से घबरा गए, पैनिक में आ गए, उन्होंने टीम को भी पैनिक में डाल दिया, प्रेशर में डाल दिया। सो सच टाइप ऑफ पर्सनालिटीज आर आल्सो पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल ग्रुप व्हिच यू विल बी डीलिंग व्हेन यू विल बी हैंडलिंग देम। ठीक है, स्पेशली आपको एंशियस लोग मिलेंगे बहुत सारे, जो जिनकी एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी से घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं। ऐसी पर्सनालिटीज को आप कैसे हैंडल करोगे, एंशियस पीपल को? क्योंकि वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारा काम करते वक्त। Yes, ma'am. Yes. करेक्ट? डॉक्टर उज्जवल कह Yes. रहे हैं, डॉक्टर उज्जवल कह रहे हैं, यार ये तो सब मेरे दिल की बातें हो रही है आज। Exactly, ma'am. Exactly. Yes. Because yes, I understand, because I deal with like around 50 group of people, और Yes, ma'am. आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। एक्चुअली में मेरे समझ में ये नहीं आया, ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से ये क्लास 12 एडोलेसेंट पीरियड में चालू करना चाहिए सिलेबस हाँ में। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस से ज्यादा मेरे पास ना, आई आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे बहुत सारे टाइप ऑफ पीपल से डील करने को मिला है,
एंड अभी भी जो मेरे पास लाइक आई मीन आई हैव अ टीम जिसमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं, लाइक माय टोटल एक्सपीरियंस इज 11 years, but I handle people who are like 20 years of experience, 21 years of experience, so it's all double, and they are reporting under me. So it is very important for me to behave in a very proper manner, and then I Yes, also ma'am. observe people, because मेरा जो actual job है that They is to, easily observe. yes, we have to observe. Otherwise what happens, अगर हम लोग भी रिएक्शन दे देंगे, एंशियस हो जाएंगे, तो हमारा भी हमारी टीम जो है खराब हो जाएगी. मैम करेक्ट. आपका की साइकोलॉजी की कुछ पार्ट है? तुम लोग बताओ, क्या लगता है आप लोगों को? आप लोगों को क्या लगता है मेरा प्रोफेशन क्या है, कोर प्रोफेशन? मैम मेरा तो मैं सोचा आपका साइकोलॉजी का कुछ पार्ट है. दृष्टि बताएगी. दृष्टि, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज माय कोर प्रोफेशन? मैम मैंने सोचा ही नहीं कभी, सच बताऊं तो सोच के बताओ, एक गैस मारो. नो आइडिया मैम, ऐसे कैसे बता सकते हैं? इसका मैम कोई मतलब आइडिया? इसका मतलब मैंने जो अभी तक पढ़ाया तुम लोगों को इतने टाइम से, असर ही नहीं हुआ उसका. थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखो, थोड़ा सा. अच्छा चलो गैस मारो. मैम मेरे हिसाब से तो साइकियाट्रिक अब तो हो भी सकते हैं. हिमानी बताएगी. हिमानी. मैम आई थिंक मैनेजमेंट लाइन से, मतलब मैनेजर और काइंड ऑफ मतलब सुपीरियर मैनेजमेंट में. मैनेजमेंट में हूँ तो हाँ किस जी चीज की मैनेजमेंट में हूँ, क्या मैनेज करती हूँ? मैम, ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हम्म. लेकिन जो एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट होता है, मतलब जो डॉक्टर्स और नर्सेस का होता है, और उनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनानी होती हैं, शायद से कुछ मतलब मैनेजमेंट ऑफ पर्सन, शायद, पता नहीं मैम. चलो मैं आपको बता देती हूँ. मेरा कोर प्रोफेशन इज फाइनेंस. मैं बोलने वाली थी मैम, क्योंकि आपने ना पहले एक बार बोला था, बट मैं सच बताऊं तो मैम आपका मतलब आप जिस हिसाब से बात करते हो, जिस हिसाब से क्लास कराते हो, मुझे लगा नहीं कि मतलब मैं ऐसे जज करना, मतलब अगर मैं बोल दूं और फिर ऐसा ना हो, बट मुझे याद था कि आपने बोला था कि आप फाइनेंस में यस हो. यस यस हाँ, मुझे एग्जैक्टली. याद था ये चीज. पहले वाला क्लास में ही बोला. हाँ, नहीं हाँ. पहले वाला क्लास याद नहीं मुझे, बट मैम ने बोला था, मुझे याद है. तो जनरली क्योंकि मुझे कैसे याद है मैं बताऊं, फिर हिमानी जी ने भी बोला था कि मैं भी फाइनेंस में हूँ, ऐसा करके कोई बात हुआ था, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, तब मुझे वैसे ही याद है वैसे. नहीं मैम, आपने बोला हुज डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस सिचुएशन में आपने बोला था. हाँ. तो मेरा जो है कोर है दैट इज फाइनेंस. ऑल्दो आई हैव डेल्ट विद लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. मैंने स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और आपके काफी सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स भी, ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इन सब पे काम किया हुआ है, रिसर्च पे भी काम किया हुआ है. क्योंकि जनरली जो फाइनेंस वाले लोग होते हैं वो दे आर वेरी वेरी क्लोज पीपल, एंड दे आर वेरी नंबर बेसिस. मतलब एज अ ह्यूमन आई एम नॉट मोर इनटू नंबर्स. मुझे लाइफ में ऐसा सोचती हूँ, मतलब दैट इज माय थॉट प्रोसेस कि लाइफ इज नॉट अबाउट नंबर्स, लाइफ इज मोर अबाउट ट्रेड्स, पीपल, कनेक्टिविटी, है ना, हैप्पीनेस, है ना. यस 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 मैम. बट as per your knowledge, I am actually my work is working on numbers, जहाँ पे मुझे ह्यूमन ट्रेड्स को हटा के काम करना पड़ता है. दिमाग में सिर्फ ये रखना पड़ता है, भाई आज 2 करोड़ की पेमेंट है, आज किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, और 50 लोगों से वो काम करवाना है. एंड आई एम मोर इनटू पेमेंट्स, इंडियन पेमेंट्स, टैक्सेशन, आपके बैंक 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 रिकंसिलिएशन, मतलब बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रेजरी और ये सब. सो दैट इज माय कोर वर्क.
बट आप लोगों को साउंड नहीं करा कभी, है ना? नहीं मैम, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब आप जिस हिसाब से आपका नॉलेज है, मतलब जैसे आप क्लास कराते हो, समझाते हो, Yes, yes. मुझे लगा नहीं। मतलब फाइनेंस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वही आपने बोला ना कि यू हैव टू डील विद द नंबर्स एंड ऑल, जहाँ से मतलब ये सब बिल्कुल अलग है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये वो बिल्कुल अलग वे है दोनों। मुझे लगा नहीं कभी, इसीलिए आपने जब पूछा ना, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि लगता नहीं है कि मैम ऐसा फाइनेंस में है। बट मुझे याद था दिमाग में कहीं कि आपने बोला था एक बार। और मैं आपको एक बात बताऊं, फाइनेंस में आपको गर्ल्स भी कम मिलेंगी। मैम ये आप कैसे हैंडल करते हो ये जब ऐसे मैंने इस सिचुएशन में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पब्लिक भी होते हैं, बहुत सारे मेंटालिटी का, हाउ टू हैंडल इट? देखो मेरा जो डीलिंग है, खैर अब तो, पहले तो पब्लिक से इतना नहीं, मैनेजमेंट से ही था, अभी थोड़ा सा। नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि आप कैसे ये कूल रह के इतना कंट्रोल करते हैं। ओके, इसका मेरा जो अपना फंडा है वो ये है। देखो जो मुझे लगता है, एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर मुझे ना, मेरे बेटे ने बहुत कुछ सिखाया। मतलब ही इज 1 year old, यस और मैंने उससे बहुत, मैं उसको बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। मैं एक्चुअली आई ऑब्जर्व किड्स अ लॉट, नॉट ओनली माइन, बट वैसे भी फैमिली में जो रहे हैं या मेरे मामा की साइड पे जो रहे हैं, मैंने देखा है कि एक टाइम के बाद ना सिचुएशंस ऑटोमेटिकली एट पार अपने आप नॉर्मल हो जाती है। किसी ना किसी सिचुएशन की अगर आप बात करें, जैसे हम कोविड देखो, कोविड कितना बड़ा पैनिक लेके आया हम लोगों के लिए। यस ठीक है, वी हैव लॉस्ट लाइव्स आल्सो, बट मेरे खुद के घर से भी 2 लोग गए हैं, नॉट नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। इनिशियली बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना उस चीज को, बहुत मुश्किल। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया, एंड ऑटोमेटिकली हम लोग ट्यून हो गए उस सिचुएशन के अंदर। करेक्ट। जब हमें, इवन जब हम फाइनेंस में या फिर किसी भी काम में हम लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर चीज का एक सोल्यूशन है। इट्स जस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विद अ काम माइंड। ठंडे दिमाग से हमें सोच के उसको निकालना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में ये चीज है ना कि हाँ, आपको सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। और मैं आपको एक चीज और बताऊं डॉक्टर जोली, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एंड इट इज टू ऑल माय पीपल आल्सो। आई रियली लव माय टीम, आई रियली लव माय पीपल। और कहीं ना कहीं वो जब पॉजिटिव वाइब, जब भी हम लोग मीटिंग्स लेते हैं, वो जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ना लोगों को, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स में वो लोग ही सोल्यूशन ले आते हैं मेरे लिए। ओके ओके। मीन्स, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये सोच के आगे बढ़ना है। हाँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है अपनी लाइफ में। यस यस यस। और वेरी ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ रहता है। देखो, ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया था, बोले बेटा, हंस के काटो या रो के काटो, जो लिखा है, जो होना है, उसे हमें बियर करना है। चल नहीं सकते। यस करेक्ट, है ना? सो इवन इन योर वर्क ऑल्सो, आप शाइन कब करते हो? जब आप थोड़ा सा, देखो, अगर हम टेक्निकल साइड पे जाएं, तो मेरा एक काम करने का तरीका यह है, आई ऑलवेज प्लान माई डे इन अ मॉर्निंग। ये मेरे टू डू टास्क है जो मुझे आज खत्म करने हैं। ये हमारी चीजें हैं जिस पे मुझे अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाना है। ये सारे मेरे पर्सनल टास्क है जो मुझे घर जाके करने हैं, और इतने बजे से इतने बजे तक ये काम मुझे खत्म कर लेने हैं। अगर मैं वहां पूरी हो जाती हूँ ना, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। यस। देन माई नेक्स्ट डे इज ऑल्सो वेरी प्रोडक्टिव। इवन माई, आज का दिन तो प्रोडक्टिव होगा होगा, उसके साथ साथ मेरा नेक्स्ट डे भी प्रोडक्टिव होगा। मुझे किसी ने थोड़े टाइम पहले कॉलेज टाइम में बताया था दैट यू आर वेरी अनऑर्गेनाइज्ड।
उस टाइम पर तो मैंने बताया ना, आई वॉज वेरी एंशियस, और मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती थी यार, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, लोगों ने मुझे किसी ने ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन लेटर ऑन, maybe in couple of years, in 1 or 2 year, I realized that was a right observation for me. I started working on that. समझ में आया? Yes, मीन्स yes. अगर आपको कोई क्रिटिक्स मिलते हैं किसी से भी, तो थोड़ा सा उसको हमें ठंडे दिमाग से ले लेना चाहिए, वो हमारे लिए अमृत की तरह काम करते हैं। ये तो है मैम, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में हमको बहुत गुस्सा आता है, और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कैसे इसने बोल दिया मुझे ऐसा। फिर बाद में अगर सोचो तो वही, हाँ वैसा तो है। जैसे कि मैं मेरा सिनेरियो बताऊं तो मैं मम्मी पापा की एक ही बेटी हूँ, तो मैं जब बाहर, मतलब 12th के बाद मैं बाहर ही चली गई, मैं बैंगलोर में रहती थी, वहां से मैंने नर्सिंग किया है। तो फिर मेरे मम्मी पापा दोनों मुझे बोलते थे कि तुमको बाहर जाके बहुत एडजस्टमेंट इशू होगा, तुम हॉस्टल वाले वहां जाके हॉस्टल में लोगों के साथ नहीं रह पाओगे, अकेला मतलब रह के इतना वो। फिर जब मैं बाहर गई और मुझे रूममेट्स मिले, पहले पहले मुझे इशू होता था, बट धीरे धीरे जब मैं, मतलब वही एट द एंड ऑफ द डे सोने के पहले मुझे वही याद आता था कि मम्मी पापा ने ऐसा बोला था कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, और इस चीज को मैंने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। आई वर्कड ऑन मी माई सेल्फ, एंड उसके बाद फिर मजा आने लगा दोस्तों के साथ। अब 3 साल बाद जब उनको छोड़ना पड़ा तो मुझे रोना आ गया कि 3 साल, मतलब ऐसा होता है ना रहते रहते कि हम सोचते ही नहीं कि उनको छोड़ के फिर से हमको कहीं और जाके काम करना पड़ेगा या रहना पड़ेगा, ये तो बात है। सेम स्टोरी ऑफ माइंड। बट मेरे साथ ये नहीं था, मेरे पेरेंट्स को लगता था मैं बहुत एडजस्ट कर जाऊंगी आराम से, लेकिन माय पर्सनालिटी वाज डिफरेंट। मतलब मैं, बिकॉज आई वाज द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली, और मेरा बहुत चलता था मेरी फैमिली में, लाइक व्हाट एवर आई से एवरीबॉडी यूज्ड टू फॉलो। ट्रस्ट फैक्टर बहुत हाई था, बट मुझे भी लोगों से एडजस्ट करने में इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होती थी। और मुझे ऐसा लगता था व्हेन आई वेंट टू हॉस्टल तो मुझे लगता था ये वाला टाइम जल्दी से कट जाए यार, मतलब आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव विद दीज पीपल, मुझे ये लोग पसंद नहीं आ रहे। बट जैसे दृष्टि ने बोला, एट द एंड आई आल्सो क्राइड व्हेन आई वाज लीविंग देम। तब तो लास्ट में तो ऐसा लगता था यार हम इनके बिना रह ही नहीं सकते, है ना? तो see what we're trying to understand from these lessons, from these experiences, that there are one or the other important trait in a personality which will impact or which will influence the overall personality. Guys, one moment, one moment. Okay, ma'am. Okay.
Okay. Okay, I'm back. Sorry guys. मेरा वेट आउट जाता गया बीच बीच में. हेलो हेलो. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Continue. Yes, ma'am. ठीक है. ओके. अच्छा चलो आगे के हम लोग फटाफट खत्म कर देते हैं. So when we say कि we have some personality traits which will influence the overall personality, then we also see that there are some social groups interactions which will also impact the personality, which is and then as we say, जैसे अभी हमारे साथ दृष्टि ने शेयर किया that initially she was not very adjustable. Later on, when she was a part of her hostel life, therein she interacted with a group, she stayed with some friends, she understood life, and then she came up as an adjusted person. She developed herself as an adjustable person. So that means your personality is also influenced by the social interaction. ये वाला जो हमारा point है ना, ठीक है, clear हुआ? So it means that we come in contact with, देखो very same point जो हमने जो दृष्टि ने बताया, when we come in contact with other members of society, we acquire certain qualities while we exhibit certain others. So all these come to or all these will lead to a formation of a personality. Clear guys? है ना, वही point है ना? Yes, ma'am. Okay, then personality represents a unique organization of persistent, dynamic, and social predisposition. Okay, so it says, देखो क्या बोलते हैं, in personality various qualities are not put together and they are in fact integrated into one. So this integration is nothing but a result of organization which may be different from one person to other. The behavior of a person directed to one particular individual may differ from the behavior of the other person, and that is why we put the condition of a suitable environment. This suitability is concerned with individual specification. Okay, and there is generally a recognizable order and regularity of behavior. Essentially, people act in same ways or similar ways in a variety of situations. Okay, so basically हम लोग क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों के हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे सोशल इंटरेक्शंस, हमारे ग्रुप्स, इन सारी चीज़ों की वजह से भी हमारे जो पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या जो हमारी पर्सनालिटी बन के आ रही है ना, that is also something which may be which may be seen or observed among a set of group with a set of functions, a set of work style, set of personality.
Oh, sorry, guys. I was speaking on mute. Hello. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. अच्छा मैंने कहाँ लास्ट पॉइंट छोड़ा था, because I was continuously talking on mute. ये वाला पॉइंट कर लिया था हमने, influenced by social interactions. Yes, ma'am. And this personality is a unique organization to persistent dynamic and social pretty. ये बता दिया मैंने? No, ma'am. yes ma'am. बता दिया. अच्छा चलो मैं फिर भी एक बार इसको 3-4 पॉइंट ठीक है कोई कर रही थी. It was on mute, sorry. Sorry, my mistake. Technical issue from my side. Okay. अच्छा देखो कह रहे हैं कि पर्सनालिटी आपका जो है it represents a unique organization of persistent dynamic and social period. Means जो आप अपने social groups से सीख के आते हो, जो आपके अपने upbringing से सीखा है, जो आपने अपनी studies से सीखा है, जो आपने experiences ले गए हैं, उससे भी आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप होके आती है या पर्सनालिटी का कोई ट्रेट डेवलप होके आता है which will impact your work, your lifestyle, your behavior, your output, right? इसमें आपके दोनों ही मीन साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट दोनों आते हैं. आपके बिहेवियर्स, एक्शंस, इन सब चीजों पर भी आपकी पर्सनालिटी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. सो whenever you are allocating any work, whenever you are facing new challenge, whenever you are finding new jobs, or whenever you are allocating new jobs, new work to your team, at that point of time it is very very important to understand the different traits of personalities जो आपको बहुत ज्यादा apparent दिखते हैं. जैसे मैंने अभी बात करी, जैसे डॉक्टर उज्जवल है. I think he is able to connect with my lecture quite a lot because his experience was same. He has experienced the same situations which I am trying to explain and make people understand, right? मैं आपको बता रही हूँ like इस तरह की situations आती हैं, इसको ऐसे डील करना है. But Dr. Ujjwal has already dealt with it, correct? Dr. Ujjwal? Yes ma'am, yes. So that is why you are able to relate yourself more through with this session. So it means उज्जवल के एक्सपीरियंस से, उज्जवल के सिचुएशनल हैंडलिंग से, उज्जवल के प्रोफेशनल लर्निंग से जो एक पर्सनालिटी ट्रेट अभी इस सेशन के हिसाब से जो निकल के आया है, दैट इज वेरी ही इज वेरी इंटरेस्टिंग और ही इज quite interested in the session, right? He is very participative. So that is a personality trait which I am able to capture in this particular situation. So same ways when you are dealing with group of people, you always, जैसे आपके अंदर 10 टीम मेंबर्स डाल दिए गए, आपने उसका एनालिसिस करो अपने पास पेन पेपर लेके कि ये इसकी कैसी पर्सनालिटी है, कौन सा ट्रेट बहुत उभर के आता है, उसकी कैसी पर्सनालिटी है, CDEF, ऐसे सबके लाइक आपके 10 मेंबर्स है तो 1 to 10 मेंबर्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप आइडेंटिफाई करो अपने पास. मतलब डोंट डिस्कस विद योर ग्रुप ऑफ पीपल एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसको किस चीज में डालूं, किसको किस चीज. सो योर पीपल हैंडलिंग, क्योंकि देखो जैसे आपने मेरे से एग्जांपल पूछा कि आप अपने काम को कैसे मैनेज करते हो. मैं अपने काम को बांटती हूँ और बांटकर उनमें अपने टीम मेंबर्स को एलोकेट करती हूँ. तो मुझे जब मैं टीम मेंबर्स को भी एलोकेट करती हूँ तो मैं उनको ग्रुप्स में काम देती हूँ. ग्रुप्स में भी काम देने के बेसिस पे मैं ये देखती हूँ कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स एक ग्रुप के अंदर रखूँ. जैसे हार्ड वर्किंग है, फिर इंटरेक्टिव है, लर्निंग है, कॉन्फिडेंट है, ये सारे ट्रेड्स को एक में डालूंगी, फिर इन्हीं सारे ट्रेड्स का कॉम्बिनेशन एक में डालूंगी. सो आई इंश्योर कि मेरा जो ग्रुप ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स वो इस तरह से उसका एक मिक्सचर बनना चाहिए कि मेरा जो पूरा ग्रुप है वो उसको परफॉर्म कर सके. जैसे एक पर्सन उसके अंदर अगर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है और दूसरा कॉन्फिडेंट है तो वो जो कम कॉन्फिडेंट वाला बंदा है उसको भी अपने साथ थोड़ा सा खींच लेगा काम में, ठीक है? बिकॉज आई ऑलवेज कीप ऑन गिविंग लेक्चर्स ऑन वन थिंग कि अगर टीम अगर एक अच्छा करेगा तो टीम अच्छा नहीं करेगी, लेकिन अगर टीम अच्छा करेगी तो सभी लोग अच्छा करेंगे. तो उनको टीम के ऊपर ज्यादा ज्ञान देने से क्या होता है कि टीम उस चीज को पिकअप कर लेती है, ठीक है? So whenever you would also be allocating work to your groups, to your people, to your team, always identify the personality traits, work on it, ठीक है? ओके. अच्छा
दूसरी बात कह रहे हैं कि पर्सनालिटी में ना काफी आपको मल्टीपल एक्सप्रेशंस मिलेंगे, विच इज वेरी कॉमन। थॉट्स भी है, फीलिंग्स, रिलेशनशिप, योर इंटरेक्शन, योर बिहेवियर, इन सब का मिक्सचर ही आपका एक पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन रहेगा। अच्छा, अब एक छोटा सा हमारा ये पॉइंट है जिसको मैं आपको और बता देती हूँ कि जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, आपकी पर्सनालिटी किस किस फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, भाई आप किस एनवायरमेंट पे रहे हो, है ना, वहां पे आपको किस तरीके के एटीट्यूड्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रिंसिपल। जैसे कई लोग होते हैं बहुत ट्रेडिशनल फैमिलीज से आते हैं, तो आपको दिखेगा कि उनके थॉट प्रोसेस से काफी काफी ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है उनका, है ना। दे आर वेरी प्रिंसिपल ओरिएंटेड पीपल, सो दैट मीन्स उनके एनवायरमेंट में वैसा रहा था, तो दैट इज व्हाई they have perceived such notions from the environment, and they have developed them in their own self, and their personality has come up like this. Their personality is very traditional, close to the culture, close to the value system, principles बहुत high हैं, ठीक है। तो वो आपने अपने environmental factors से सीखे। उसके बाद आ जाता है हमारा physical factors। physical factors कैसे हुए, जैसे कि आपके जैसे कई लोग काफी हाइटेड होते हैं, या उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका लैंग्वेज, उनका फिजिक, है ना, उनका जेंडर, ये सारी चीजें भी आपके पर्सनालिटी को मैटर करती है। जैसे हम बोला जाता है कि मैं जेनरिक बता रही हूँ, मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर जेंडर, मतलब कोई अपने दिल पे मत ले लेना। जिससे बोला जाता है कि गर्ल्स आर वेरी सिंसियर, अब थोड़ा सा बॉयज ना अपने दिल पे ना ले लें, ठीक है। बोला जाता है गर्ल्स आर वेरी सिंसियर, बॉयज कई बार, ऑल्दो बॉयज आर ऑल्सो वेरी सिंसियर, क्योंकि आज की डेट में तो दोनों जो भी काम नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप गर्ल्स को थोड़ा डांट दोगे तो वो चीजें ना संभाल लेंगे, बॉयज फिर भी थोड़ा सा कर जाते हैं, नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, बोले दो कोई बात नहीं हम कल कर लेंगे, देखा जाएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो जो जेनरिक बता रही हूँ मैं, कभी कभी होता है, कभी कभी दिखता है। तो आपके फिजिकल फैक्टर्स पे भी, अच्छा somebody who is very very tall, एंड आपने देखा होगा कि काफी जो बहुत ज्यादा लंबे लोग होते हैं, मतलब इट्स नॉट वेरी कॉमन, बट आई मीन इफ यू विल ऑब्जर्व देम, तो उनका पर्सनालिटी ट्रेट में आपको ना वो मिलेगा, दे आर वेरी थोड़ा बोल्ड रहेंगे, ज्यादा जॉली रहेंगे, हंसते रहेंगे, है ना। और आपने देखा होगा जो थोड़े हेल्दी पीपल होते हैं, दे आर वेरी पीपल ओरिएंटेड, उनको आपका इमोशनल हाई, वैल्यू हाई मिलेगा। तो इन सारे फिजिकल फैक्टर्स से भी आपकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है। देन वी हैव सिचुएशनल फैक्टर्स, जैसे विदुष ने एग्जांपल दिया कि पहले वो घर पे थी तो पर्सनालिटी कैसी थी, जब हॉस्टल में गई तो पर्सनालिटी कैसे निकल के आई। तो आपके लुक्स पे, आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके सिचुएशंस का इम्पैक्ट रहता है। हेरिडिटी, डेफिनेटली हेरिडिटी में मतलब आपका एनर्जी लेवल, बायोलॉजिकल लेवल, आपके जेनेटिक्स में कैसा रहा है। जैसे कई के जेनेटिक्स में, जैसे कई लोग ना बहुत ज्यादा आउटस्पोकन होते हैं, तेज बोलते हैं, तो बोला जाता है ना कि आप इतना नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ही बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, देखिए ना अपने आंसर्स। सो दैट्स अ हेरिडिटी इम्पैक्ट। फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स, ऑब्वियसली आपकी पेरेंटिंग कैसे रही, आपने किस तरह का लाइफस्टाइल देखा, सीखा, आप न्यूक्लियर फैमिली में बॉर्न एंड बॉट अप रहे हो, या आप जॉइंट फैमिली में बॉर्न एंड बॉट अप रहे हो, ये सारे फैक्टर्स हैं। जबकि कल्चरल फैक्टर, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो, कि हम उसमें कैसे डील करते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, अपने आप को कैसा वहां पे देखते हैं, तो ये भी हमारा उसमें आ जाता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हमारे, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कल्चरल फैक्टर्स की किस तरह के सोसाइटी में हम रहे हैं, किस तरह के कल्चरल वैल्यू सिस्टम देखा है, इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, देन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे रहे हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसी हैं, हम लोग कितना ओपन है, कितना बात मोटिवेटेड है, क्या लीडरशिप ट्रेट्स रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स जो हमारे पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालेंगे, ओवरऑल पर्सनालिटी को बनाएंगे। ठीक है, क्लियर? यस मैम, यस मैम। ओके, अच्छा एक ना छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसको वैसे थोड़ा शॉर्ट में डाल दिया है ताकि आपको खाली इसका जिस्ट पता हो, है ना।
लर्निंग के अंदर ना ये 4 कंडीशनिंग थ्योरी थी, जैसे क्लासिकल, ऑपरेंट, कॉग्निटिव और सोशल। देखो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या बोलती है कि हमने एक स्टिमुलाई डाला, उसने उस पे सामने वाले ने कैसे रिस्पॉन्स किया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको डांट दिया और आप रो दिए, तो डांटने की वजह से रो देना, दैट इज योर क्लासिकल कंडीशनिंग। मीन्स कि लोगों की कंडीशनिंग या लोगों का बिहेवियर जो है हम पर्टिकुलर एक फैक्टर से कंट्रोल कर पा रहे हैं, दैट इज योर क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग व्हिच अ पर्सन रिएक्ट्स टू सर्टेन स्टिमुलाई that would not normally produce a response. So it is a learning process to add a particular thing to our environment to predict what will happen next. देखो जो मैंने भी डांटने वाला एग्जांपल दिया है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग में बेसिकली क्या है, लर्निंग प्रोसेस ऐसा है जब हमें पता है कि हम ये फैक्टर या ये ट्रेट ऐड कर देंगे तो सामने वाले के बिहेवियर में ये चेंज आएगा। जैसे कि हमें पता है हम प्रमोशन दे, अब जैसे हमने प्रमोशन दे दिया अपने एम्प्लॉय को, हमें पता है इसको ये प्रमोट कर देंगे तो ये काम को और बहुत ज्यादा अच्छे से करने लग जाएगा। सो दैट इज योर क्लासिकल कंडीशनिंग वेयर वी हैव अ प्री डिटरमिन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स कि इस फैक्टर से इसमें ये वाला चेंज आएगा, तो दैट इज योर क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? जी मैम। यस यस मैम। समझ में आ गया Yes, ना? ठीक है, ओके। दूसरा हमारा आ जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या बोलती है? ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलती है कि हर चीज का ना, हर कंडीशनिंग का कुछ ना कुछ या तो पनिशमेंट होती है या फिर कोई रिवॉर्ड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, पीपल विल रिपीटेडली बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे फ्रॉम वेयर दे विल गेट बेनिफिट्स, ऑन द अदर हैंड दे विल ट्राई टू अवॉइड अ बिहेवियर वेयर दे विल नॉट गेट एनीथिंग। ओके अच्छा, इसमें बेसिकली ये वाली थ्योरी क्या बोलती है, ऑपरेंट थ्योरी बोलती है कि हर चीज में ना लोग ना कुछ ना कुछ बेनिफिट या पनिशमेंट दो चीजों से देखते हैं। जैसे अगर ज्यादा काम है और ज्यादा काम से हम पैनिक हो रहे हैं, हमें ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसको अवॉइड करें, दैट मीन्स उस काम उस प्रेशर की वजह से पैनिक का आना, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। या उस प्रेशर की वजह से आपको बेनिफिट मिलना, यानी कि रिवॉर्ड्स मिलने, मतलब जब आप काम अच्छा कर रहे हो उसके बाद रिवॉर्ड्स मिलने, सो दैट इज योर रिवॉर्ड सिस्टम। सो बोलते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलती है, इसमें स्किनर ने बोला था कि ऑपरेंट कंडीशन की हर ऑपरेशन के, हर काम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक आपका पनिशमेंट और एक आपका रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, इसका एग्जांपल पढ़ लेना। सपोज यू आर an ex-bank employee, your branch manager announced in a meeting that you will get a bonus if you can deposit so and so for the bank. You worked hard and found that you did it successfully. But when the time comes, you get that you are not given any bonus of your hard work, which increased the bank deposit for this year. If your manager again tells you about hard work, maybe you will not work hard because last year you got nothing for it. So many of the activities that will engage in during everyday life can be classified as an operator. Locking your keys in a lock, writing a letter, saying I love you to your wife, to parents, calling on the telephone. These are all functions that are operative in the sense that we do them in the anticipation of return, that act as a corroboration for the commission of these behaviors. क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलती है कि हर बिहेवियर पे ह्यूमन फैक्टर क्या एक्सपेक्ट करता है कि या तो मुझे इसकी कोई पनिशमेंट है या फिर मुझे इसका कोई रिवॉर्ड है। तो उस एक्सपेक्टेशन को अंडरस्टैंड करना ही हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी होती है। ठीक है, जहाँ पे every personality, every person would be expecting a sort of behavior out of any particular action. जैसे कि मैंने बोला कि आपने किसी टीम मेंबर को बोला कि आप अच्छे से वाला काम करो, आपको हम ये देंगे, तो वो देना मतलब वो उसको मिलना, that is his expectation for that particular operation, यानी कि that particular set of work. Clear हुआ? yes, ma'am.
Yes, सबको yes, yes. Continue. ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसमें ज्यादातर हम लोग बात करते हैं थॉट्स की, अंडरस्टैंडिंग की, कि हम ये मान के चलते हैं कि एक पर्सन का थॉट, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका बिहेवियर, वो सब चीजें जो है उसका इम्पैक्ट उसके परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। जैसे एग्जांपल कुड बी दैट यू आर टॉट हाउ टू टेल time by looking at a clock. Someone told you about big hands and small hands. The meaning is taught and you have to practice telling the time when you are learning it for the first time. So this learning process was completely inside your mind and did not involve any physical movements or behavior. So cognitive theory has been used to explain mental process as they are influenced by both internal and external factors which ultimately bring about learning in a person. Means कह रहे हैं कि जब भी कॉग्निटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं, वो ये बोलती है कि कोई भी एक्शन किसी का जो है वो उसके अपने खुद के इंटरप्रिटेशंस, खुद के नॉलेज के बेसिस पे रहता है। सो हमें उनके एनवायरनमेंट में ही ऐसे कुछ फैक्टर्स डाल देने चाहिए जहां से वो कुछ परसीव करके उसको अपने एक्शंस में लेके आए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी कोई टीम है, उस टीम के अंदर आप एक टीम से डील कर रहे हो, आप इंडिविजुअली जा जाके मत बोलो कि आप ऐसा करो वैसा करो, आप अपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा ऐड करो जिससे उनको समझ में आ जाए, यार आज ये वाली सिचुएशन है, मैं इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेना है वरना हमारे लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है, या आज हमें ये कर लेना चाहिए सो दैट ये हमारी टीम के लिए रिवॉर्डिंग एक अपॉर्चुनिटी बन के आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई वी से cognitive learning theory is more about your thought process, your interpretation, your personality, your understanding. अब जैसे ये कोविड की सिचुएशन भी आई थी, आपने देखा होगा डॉक्टर्स की टीम ने, हेल्थ वर्कर्स की टीम ने उसको एक चैलेंज की तरह, उसको एक मुश्किल हालात की तरह पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया कि हम इससे लड़ेंगे। ऑल्दो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, बट फिर भी वी सर्वाइव्ड, राइट। बहुत सारे लोग ठीक होके भी वापस आए। सो वो उनके एनवायरनमेंट में इस तरह से वो इंड्यूस करी गई चीजें कि वहां से उन्होंने उसको पॉजिटिवली इंटरप्रेट करना शुरू किया। सोशल लर्निंग प्रोसेस अगेन वो मोर और लेस सेम है, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करके सीखते हैं, एंड देन यू नो वी हैव द इम्पैक्ट ऑन अवर वर्क। जैसे आपका अटेंशन प्रोसेस है, रिटेंशन प्रोसेस है, रीइंफॉर्मेंट प्रोसेस है। सो बेसिकली ये इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं, इस तरह के जो काम होते हैं जो हम अपने अपने ऑफिसेज में अपनी टीम्स के लिए करते हैं। जैसे अटेंशन प्रोसेस में ऐसा मॉडल हुआ जहाँ पे हम लोग अटेंशन दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर फीचर को, किसी पर्टिकुलर काम को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को। रिटेंशन में लोगों को रिटेन करने के ऊपर काम कर रहे हैं। मॉडर्न रिप्रोडक्शन प्रोसेस में लोगों के बिहेवियर में और न्यू चेंजेस लेके आए ताकि वो नए नए टास्क को परफॉर्म कर सके। रीइंफॉर्मेंट प्रोसेस मीन्स एक पॉजिटिव इंसेंटिव देना, उनको रिवॉर्ड कर देना ताकि वो रीइंफोर्स हो जाए फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्क, ठीक है, ओके। अच्छा, हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो है वो जनरली क्या क्या काम करते हैं, ये तो सबने ही पता ही है। प्लानिंग करना, एडमिनिस्ट्रेटिव करना, कोऑर्डिनेट करना, डायरेक्ट करना, इस तरह के जो काम होते हैं और सारे हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स करते हैं। So I think we are done with our last topic also, और से पहले वाले सारे हमने खत्म कर लिए हैं। So I think that is all from my side. Any question, guys? Anything that you want or anybody wants to say? आज हमारा last session है, वैसे भी session is for to say tata bye bye also. Anybody wants to speak or anybody wants to say anything? मैम कैन वी हैव योर नंबर प्लीज, मतलब अगर थोड़ा सा कोई डाउट होगा या कुछ होगा तो। चैट बॉक्स में है। ओके मैम। मैम आपका क्लास खत्म हो गया? हाँ, ये वाला खत्म हो गया।
उसके बाद आप नहीं लेंगे? अभी देखो आप लोग का कोई सब्जेक्ट होगा तो लूंगी, अगर मेरे पास और कोई subject आते हैं। अभी एक मेरे पास सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, वो आई थिंक पता नहीं कौन आप लोग के साथ है या किसके साथ है, मुझे नहीं मालूम, चेक करना पड़ेगा। आई हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग MHA 302। आप लोग का है क्या 302? मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई हैव वन सेशन, 3 to 5 क्लास सेशन है। आप लोग की है क्या क्लास आज? नो मैम। अकाउंटिंग नहीं है ना आपके नहीं पास? मैम आज तो नहीं है हमारा क्लास। हाँ तो फिर मेरे पास अकाउंटिंग का एक सेशन है MHA 302 बैच के साथ। तो आई थिंक ये इस वाले सब्जेक्ट का हमारा लास्ट क्लास है जो विच इज ओवर नाउ। मैम पढ़ते पढ़ते अगर कोई डाउट्स आया तो फिर क्या करें? व्हाट्सएप कर देना मुझे। ओके ठीक है मैम, ठीक है। पर मैं आपको एक बात बोलूं, मतलब आई वुड मतलब रादर सजेस्ट कि पहले आप अपने ग्रुप्स में अपने लोगों में आपस में डिस्कस डिस्कस करें, हाँ हाँ हाँ। हाँ, इससे क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिल जाती हैं। आप मेरे पास आओगे, यू विल कम विद स्पेसिफिक क्वेश्चन, आई गिव यू द स्पेसिफिक आंसर। बट व्हेन यू गो टू योर ओन ग्रुप, योर ओन क्लासमेट्स, मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालो पहले, आपस में देखो, कोई ना कोई आपको सोल्यूशन दे ही देता है। बट नहीं मिलता तो यू कम टू मी। जी मैम ठीक है। एनी मतलब अगर मतलब मर्जी है आपकी, आप मेरे पर डायरेक्टली भी आ सकते हो, मैं आई एम नॉट स्टॉपिंग, बट ओके मैम। in case it is, if you get a chance to speak to your own people, that will help you. जी मैम ओके। और कोई किसी को डांट मार नहीं हो, किसी को बुरा लगा हो, कुछ किसी को Nice to talk with you. nice to talk with you. Okay, same here, thank you। इस उसको कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है वैसे। ठीक है, वाइंड अप करें फिर, यहाँ पे किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा, मैं आप जल्दी खत्म करो ना, लेक्चर बंद करो, अब जाना है हमें। नहीं मैम, नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं है, ऐसा ये नहीं है। एक्चुअली मैम, वो जो हम लोगों का जो MPH का क्लास होता है ना, हाँ उसमें मैं ज्यादा बोर हो जाता हूँ। एक्चुअली मैंने टॉपिक को बोला था, हाँ हाँ। तो वो भी हंस रहा है, तो मैंने आपका नाम भी बोला, जो इसी क्लास में मैं अच्छे लगते हैं। अच्छा ओके, थैंक यू। बट नहीं, अदर टीचर्स के साथ भी लेकिन फिर स्टार्ट इंटरेक्टिंग, आई थिंक वो भी अच्छा हो सकता है। आप लोग, मुझे लगता है आप लोग भी इंटरेक्ट नहीं करते होगे, तो ऐसा कुछ होता होगा। नहीं मैं फॉलो करता हूँ, बट वो ज्यादा से ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाए, और जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। मैंने 1 आवर का क्लास और 30 मिनट्स भी ज्यादा फुल टाइम नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा। ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि ना अभी थोड़ा सा वर्चुअल मोड पे आ गई है ना चीजें, सो प्रॉब्ली दैट कैन आल्सो बी अ रीजन। एक्चुअली मैम क्या होता है ना, वो बुक्स तो हमारे पास भी है ना, तो आप बुक से कुछ नया बोलोगे तो तब तो सुनने में कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, तो थ्योरी तो सबका पास है। अब नेट में सर्च करो, इंटरनेट में, गूगल में, सबको मिलेगा, बट कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वो अच्छे लगते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल सीख लिया? यस, आप जो एग्जाम्पल को देना बोले वो आपने दिया, वो भी अच्छे लगे। अरे अच्छा। ये बात माइंड में रहेगा। हाँ ओके। थैंक यू और वेरी मच। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है ये क्या आप दोगे या मतलब ग्रुप में ये मैसेज सीमा करो से आप सीमा लोग मैम या कोऑर्डिनेट कर लो, तौफिक सर को? सीमा से हाँ पूछ लो, ओके क्वेश्चन ओके पेपर दे देगी आपको ना, मेरे ओके पास आता ओके है तो मैं भेज दूंगी। मैं कोशिश करूंगी सीमा से लेने की, शायद भेजा ओके मैम। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, बट अगर नहीं है तो मैं आई विल आस्क हर एंड यू कैन आल्सो आस्क हर। ओके मैम आई विल टेक्स्ट हर। ठीक है। एनी अदर क्वेरी माय डियरेस्ट ग्रुप? आज तो साइलेंट लोग भी जाग गए, आज तो सब बात कर रहे हैं, वेरी नाइस। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया ना आज, इसलिए। एनीथिंग एल्स गाइस? नहीं मैम, इट्स ओके, थैंक यू।
मेरे तरफ से बस इतना ही मैम, और कुछ नहीं क्वेश्चंस। ठीक है, और हिमाली की तरफ से? नो मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके, ठीक है गाइस, सो आई थिंक वी आर गुड टू क्लोज। मैंने ऑलरेडी एक्चुअली शीट पहले शेयर कर दी थी, बट इसमें अगर एक टॉपिक कुछ और पे एडजस्ट हुआ है तो I'll share it once again and then you can, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, Okay then guys, take care. Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू you, मैम, ma'am. थैंक यू, बाय बाय।